Okay, so we'll start with the session. We have discussed in the last lecture about this, what is protoplast, that is whole living material of the cell. Whole living material of the cell is protoplast. Living material of the cell which is enclosed in plasma membrane, where we are separating the plasma membrane and other living material of the cell, then that remaining living material of the cell enclosed in plasma membrane called as a protoplasm, right? After that, this protoplasm and plasma membrane, that is all living material inside the plasma membrane, that is protoplasm, can be further classified structurally into cytoplasm and nucleus. Although nucleus is an organelle present in the cytoplasm, still we are separately studying it because of its importance of directing the activity of cell or directing the activity of that complete human body, right? Nucleus. So protoplasm can be divided into cytoplasm and nucleus. Then the cytoplasm will have the fluid in it, that is cytosol, and the organelles suspended in that fluid, that is organelles in the cytoplasm. So cytoplasm have two parts: cytosol, the liquid part of cytoplasm, and organelles like mitochondria, Golgi apparatus, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, etc. Right? And these are the organelles. And the nucleus, we have nuclear membrane, nuclear plasm. So one by one, we are going to do that. We have finished with the plasma membrane, right? So today we'll be going towards cytoplasm. Now plasma membrane part of protoplast has been done already, and now we are going to the cytoplasm, right? So cytoplasm, we have already studied this diagram when we have initiated with the cell, right? So you know basically that this watery fluid present inside the plasma membrane, and along with the organelles suspended in it, except nucleus, will be called as a cytoplasm, right? And this watery fluid, that is in which the organelles are suspended, this watery fluid is 80% of which is made up of water, and others it has dissolved or suspended solid in it. That watery content, उस watery content को क्या बोलते हैं हम? साइटोसोल. क्या बोलते हैं उसको? साइटोसोल, right? So अभी हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हम साइटोसोल पढ़ेंगे कि उसका कंपोजिशन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, and then we will go to the next part, that is organelles, right? So what is cytoplasm? Cytoplasm consists of all cellular contents between the plasma membrane and nucleus. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जो भी कंटेंट उसके आता है, that is completely a cytoplasm. Has two components, cytosol and a organelles, tiny structure that perform different functions of the cell, that we will see later. Now what is cytosol? Let's try to understand the facts about the cytosol. This is very important. You should be able to recall all the content of cytosol. जब कभी मैं cytosol बोलूं तो you should be able to recall all the contents of cytosol, right? So cytosol, obviously it is an intracellular fluid. What is the intracellular fluid? It is a cytosol, ठीक है? And सेल के बाहर जो प्रेजेंट है, that is a extracellular fluid. और दो सेल के बीच में जो प्रेजेंट है, टिश्यू के अंदर में, टिश्यू पैकिंग के अंदर में दो सेल के बीच में जो प्रेजेंट है, that is a interstitial fluid, ठीक है? तो I have three types of fluid in my body. Blood is example of extracellular fluid. Cerebrospinal fluid is an example of a extracellular fluid, right? So I have three type of fluids in my body. One which is present inside the cell, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं. One which is present inside the cell, that is intracellular fluid. One that is present outside the cell, that is the extracellular fluid. And in between two cells, in the packaging of tissue, in between two cells, we have a interstitial fluid, which can be called as a extracellular fluid because it is present outside the cell. So we are now talking about the cytosol, which is our intracellular fluid. Is a fluid portion of cytoplasm that surrounds organelles. Now this fluid which is present inside the cell, ये fluid जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेरे बॉडी में जितने भी सेल्स है, ये मेरे पूरे बॉडी का 67% फ्लूइड कंप्राइज करती है. My total body volume, जो भी बॉडी वॉल्यूम है, डिपेंडिंग अपॉन एज, डिपेंडिंग अपॉन वेट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, जितना भी बॉडी वॉल्यूम है, उस पूरे बॉडी वॉल्यूम में से 55% ऑफ बॉडी वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ सेल के अंदर प्रेजेंट है. और उस बचा हुआ जो 45% है, that comprises of interstitial fluid majorly, then intravascular fluid, and then cerebrospinal fluid, which is below 1%. So you can see in this, ये जो blue color के patch में आपको distribution दिख रहा है in terms of volume,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो पूरे फ्लूइड को अगर मैं सम अप करता हूं तो इट कंप्राइजेस 67% ऑफ माय वॉल्यूम, टोटल सेल वॉल्यूम. एंड इफ आई विल लुक फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मेरे सेल के बाहर प्रेजेंट है, आउट ऑफ विच इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज 26%, दैट इज अराउंड 26%. एंड इंट्रावस्कुलर फ्लूइड दैट इज अराउंड 7%. एंड ये 55% जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज अबाउट सेल वॉल्यूम. एक सेल के अंदर का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से कुछ पार्ट ऑर्गेनल ने ऑक्यूपाई करके रखा है, कुछ पार्ट न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई करके रखा है. न्यूक्लियस भी ऑर्गेनल है बट उसको हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, इसलिए मैं सेपरेट उसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे. न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स ने ऑक्यूपाई करके रखा है 45%, और 55% वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, आपके साइटोसोल ने, मतलब लिक्विड ने, वाटरी फ्लूइड ने उस सेल के अंदर का, एक सेल के अंदर का. मतलब अगर मैं ये सेल में देखता हूँ तो इस सेल के अंदर में ये जो फ्लूइड पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है वो 55% है, और ऑर्गेनल्स और बाकी सब चीजों ने मिलकर 45% ऑफ सेल का पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है. लेकिन अभी जो इस ब्लू पैच में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि मेरे बॉडी में जो भी वॉल्यूम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट फ्लूइड्स प्रेजेंट है, उसका रेशियो वाइज प्रेजेंस कितना है. तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज 67%, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज साइटोसोल, इट इज फॉर्मिंग द 67% ऑफ माय टोटल फ्लूइड वॉल्यूम. यू कैन इमेजिन हाउ bigger number it is, right? Then cell के बाहर जो fluid present है, that can be blood, that can be cerebrospinal fluid, और जो दो सेल के बीच में रहता है interstitial fluid, this is comprising remaining 33%. This is comprising remaining 33%, out of which interstitial fluid is 26%, interstitial fluid is 26%, intravascular fluid is 7%, and cerebrospinal fluid is less than 1%. So you can understand now that we are dealing with this particular 76%. अभी मैं यहाँ पे इसके साथ हम डील करने वाले हैं कि इसका फंक्शन क्या है, राइट? नाउ द साइटोसोल इज 75. अब ये साइटोसोल की जो बात कर रहे हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड में, उसके अंदर में वाटर प्रेजेंट है मेजरली, एंड वी हैव अ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट्स. ठीक है, ये जो साइटोसोल की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनल्स निकाल दिए सेल में से, मैंने पूरे ऑर्गेनल्स निकाल दिए, न्यूक्लियस निकाल दिया, तो क्या बचेगा? साइटोसोल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस स्ट्रक्चर में से, इस इमेज में से अगर मैंने पूरे ऑर्गेनल्स को बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर क्या बचने वाला है? सिर्फ साइटोसोल. तो ये जो साइटोसोल वहां पे बच रहा है, उसके अंदर में वाटर प्रेजेंट है 75 to 90%, एंड इट ऑल्सो हैव अ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट्स, राइट? अमंग्स दीज क्या है उसके पास? आयंस प्रेजेंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एटीपीज, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि वो जो इंटरसेलुलरली आता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सोडियम आया है बाहर से, अमाइनो एसिड आया बाहर से, फैटी एसिड आया बाहर से, थ्रू द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे हैव गॉट एंटर्ड इनटू द सेल, that is present in the cytosol in the form of dissolved or suspended component. इसमें से जो water soluble है, they will be present in the dissolved form, जो नहीं है, they will be present in the suspended form in cytosol. We are talking about the cytosol, right? Now also various organic molecules that aggregate into masses are stored in the cytosol. मतलब ये वाटर के अंदर में सिर्फ डिसॉल्व्ड मटेरियल नहीं है, इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ स्टोरेज फॉर सम मटेरियल्स, लाइक ग्लूकोज का जो कन्वर्शन होता है ग्लाइकोजन में, और वो एग्रीगेट बनते हैं ग्लाइकोजन के, या फैटी एसिड का कन्वर्शन होता है ट्राइग्लिसराइड में, लिपिड का कन्वर्शन होता है ट्राइग्लिसराइड में. तो ये जो एग्रीगेट्स बने हैं, ये जो ग्रुप्स बने हैं, दिस एग्रीगेट्स को भी ये हाउस करके रखता है. कौन हाउस करके रखता है? साइटोसोल. वी विल सी इन दिस डायग्राम नाउ. You can see very clearly, ये देखो glycogen, let me highlight. You can see these glycogen granules. ठीक है, so कहाँ पे है प्रेजेंट? साइटोसोल में glycogen granules. Apart from that, we have the triglycerides. We have triglyceride which is also present inside the cytosol. So cytosol is not only providing a watery medium or a dissolved material. Apart from that, we have an aggregate masses for the storage. It is also housing the aggregate masses for the storage. Second important function of the cytosol. Now next function what? It is providing a site for chemical reaction, metabolic reaction जो भी चल रहा है, catabolic और anabolic in nature. That chemical reaction, for that chemical reaction organelles के अंदर तो होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन चल रहा है, गोल्गी एपरेटस के अंदर में प्रोसेस चल रही है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी रिएक्शंस दैट इज गोइंग इनसाइड द साइटोसोल. वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोसोल. सो पहले हमने देखा कि साइटोसोल क्या करता है? साइटोसोल डिसॉल्व्ड मटेरियल रखता है जब कभी लगने वाला है किसी ऑर्गेनल के लिए, टू प्रोवाइड दैट इट हैव अ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट्स. Cytosol majorly 90% is made up of water, 75 to 90% is made up of water. First thing, it has a dissolved material
to be provided whenever required by the different organelles, either inside the cell or to be transported outside whenever required. So it have a dissolved and suspended component. Second, it has an aggregates of masses. That means it is providing a it is housing or it is storing the aggregates like glycogen or triglycerides. किसके aggregates है? Triglycerides aggregates of lipid and glycogen aggregate of glycogen granules, that is aggregate of glycogen molecules. उसके granules के form में उसको वहाँ पे house करके रखा है, right? Apart from that, what is third important function of cytosol? It is providing the space, it is providing water, it is providing various coenzymes. Since it is carrying various coenzymes, it is carrying water, and this is definitely a facilitatory environment for various chemical reactions inside the cell, right? So almost a series of 10 chemical reactions that produce 2 molecules of ATP from 1 molecule, etc. Glycolysis. So apart from mitochondria, it is also the site for that reaction. So remember one thing, cytosol provides a site for various chemical reaction required by the cell. 3 functions हमने cytosol के पढ़े अभी, ठीक है? Now अदर टाइप ऑफ साइटोसोल रिएक्शन प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स. यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन भी होती है, यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है, ठीक है, फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ. सो जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स. what facts you have to remember about the cytosol? It is a fluid portion of cytoplasm that surround the organelles. That is a intracellular fluid है ये cytoplasm. cytosol कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है? 55% ऑफ एक सेल के अंदर का 55% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है. दूसरा, ये साइटोसोल का कंपोजिशन क्या है? साइटोसोल is 75 to 90% made up of water. It has dissolved and suspended components. Example, ions, glucose, amino acids, fatty acids, proteins, lipids, etc. ATP and waste products. Second, apart from that, it also provides the housing facility for storage of different granules. Example of glycogen granules, triglyceride granules, etc. Right? And next, it provides an environment for carrying the different chemical reaction of catabolic and anabolic nature. Right? So this is all about the cytosol you need to understand. So you should be able to recall all this point. I hope if it is clear to you. If you have any question, you can ask. Okay, so let's go now to the second part, that is apart from cytosols. अब हमने cytosol के बारे में पढ़ लिया. Now we will be studying about the different organelles present in the cytosol. So let us start with the foundation of the cell. Let us start with the foundation of cell, that is your cytoskeleton. ठीक है, पहले स्केलेटन बनेगा. घर जब बनता है कभी भी तो पहले क्या होता है? आयरन का फ्रेमवर्क बनता है, फाउंडेशन बनता है. किसी आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, या देखा होगा किसी ने तो ध्यान नहीं दिया होगा कि कैसे बना है वो, या रिकॉल नहीं हो रहा होगा. तो सबसे पहले वहां पे होल्स किए जाते हैं. उन होल्स के अंदर में फाउंडेशन तैयार किया, होल्स के अंदर में आयरन का फाउंडेशन प्रिपेयर किया जाता है. एंड देन उसके ऊपर फिर हम कंक्रीटिंग करते हैं. एंड देन वी ऐड द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स. एंड देन वी फॉर्म अ रूम, वी फॉर्म व्हाटएवर वी हैव टू क्रिएट ऑन दैट वी कैन क्रिएट. उसके अंदर कुछ फिक्स करते हैं, कुछ सस्पेंड करते हैं, राइट? So that is, so what are, how, if I'll ask you how you will define any organelle, you know कि mitochondria organelle है, you know कि smooth endoplasmic reticulum organelle है, पढ़ चुके हैं हम इसके पहले 3-4 साल, अलग अलग साल years में हम पढ़ चुके हैं. What, so how you will be defining it, describing about the organelles. So you have to describe that organelles are a specialized structure with characteristic shapes present in the cell which functions in the cell growth, maintenance and reproduction. Either they will help in the cell growth or maintenance. Say for example, mitochondria is responsible for maintaining the different activities, or in the reproduction of the cell. You know the role of microtubule in the cell reproduction, right? And since reactions are confined to the different organelle, they don't interfere with each other. अब different organelle में different reaction चलती रहती है, और क्योंकि ये अलग अलग organelle में चल रही है, इसलिए वो reaction एक दूसरे के साथ interact नहीं करती है, interfere नहीं करती. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो रिएक्शन चल रही है, वो शायद गोल्गी एपेरेटस के अंदर में रिएक्शन जो चल रही है, दोनों रिएक्शन अगर साइटोप्लाज्म में होते थे शायद, तो दे माइट हैव इंटरफेयर. लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन अलग अलग ऑर्गन्स में हो रही है, इसलिए अलग अलग ऑर्गन में रिएक्शन होने के कारण वो आपस में इंटरफेयर नहीं करती है. एंड दैट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स, राइट? कि मेरे बॉडी में, मेरे सेल में एट अ टाइम हंड्रेड्स की 1000 टाइप के अलग अलग रिएक्शंस चल रही है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में इंटरफियर नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज these reactions are confined to the different organelles. The reaction which is happening in the mitochondria is not interfering with the reaction happening in the cytoplasm or happening in the Golgi apparatus or in the cytoplasmic reticulum, right? I hope you got this point. Next,
अगेन व्हाई दिस कैन हैपन, बिकॉज ईच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन सेट ऑफ एंजाइम. जो सेट ऑफ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, शायद वो सेट ऑफ एंजाइम्स गोल्जी एपेरेटस में प्रेजेंट नहीं है, या वो सेट ऑफ एंजाइम राइबोसोम्स के पास प्रेजेंट नहीं है. राइबोसोम के पास जो सेट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है आपके ट्रांसलेशन में से ट्रांसलेशन प्रोसेस कैरी करवाने के लिए, वो एंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास में प्रेजेंट नहीं है. देयरफॉर वो रिएक्शन उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल के अंदर होंगी, राइट. तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल हैज इट्स ओन सेट ऑफ एंजाइम्स. रिमेंबर दिस. इफ आई आस्क यू कि ये पर्टिकुलर न्यूरॉन सिर्फ डोपामिन ही क्यों बनाता है, दूसरा न्यूरॉन डोपामिन क्यों नहीं बना सकता, वो क्यों एड्रेनलिन बनाता है, तो यू शुड बी एबल टू नो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिक कि वहां पे वो इसलिए बन पा रहा है क्योंकि वो बनाने की मशीनरी वहां पे प्रेजेंट है. मशीनरी क्या है किसी भी चीज को बनाने के लिए? रॉ मटेरियल, प्रिकर्सर केमिकल लगेगा, प्रिकर्सर अमाइनो एसिड लग सकता है, राइट, और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेंगे आपको? एंजाइम्स लगेंगे, राइट. तो वो सेट ऑफ एंजाइम्स उस न्यूरॉन के अंदर में प्रेजेंट है, इसलिए डोपामिन बन रहा है. दूसरा सेट ऑफ एंजाइम दूसरे न्यूरॉन के अंदर में प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे एड्रेनलिन या गाबा बन पा रहा है. तो ये कभी भी ध्यान में रखना, अगर कोई ये पूछता है आपको कि इसी ऑर्गन में ये चीज क्यों बन पा रही है, बिकॉज इट हैज दैट प्रिकर्सर, इट हैज दैट सेट ऑफ एंजाइम्स, देयरफॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनल कैन प्रोड्यूस दैट थिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट, the number and type of organelle, again important thing, the number and type of organelles vary in the different cells depending upon the cell's function. लीवर के सेल के अंदर में जो सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जितने नंबर्स में प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये बोल सकते हैं मेरे को कि लीवर में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, हार्ट में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल these cells will vary. Why? Because the need of their ATP in the different cell varies, right. Few generates, like heart depends majorly on the fatty as fat, lipids and glucose as a source of energy, but your brain is only utilizing glucose as a source of energy and more or ketone bodies, right. So उनका precursor भी अलग है, उनके पास में set of enzymes अलग है. Therefore this point you should remember always that किसी भी सेल के अंदर में hepatic, renal या मैं हार्ट का सेल या कोई भी सेल को जब कंपेयर करता हूं, तो उन सेल के अंदर में या तो ऑर्गेनल्स का डिफरेंट होगा, या तो कुछ ऑर्गेनल्स जो सेम है उसमें उनका नंबर्स ऑफ ऑर्गेनल्स का डिफरेंस रहेगा, राइट. सो व्हेन यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट, राइट. बेसिकली दैट इफ आई एम विजुअलाइजिंग एनी सेल, और उस सेल का जब मुझे ऑर्गेनल डिफाइन करना है, दैट आई शुड बी एबल टू कैरेक्टराइज these points about that organelles, right. So what we have understood in this, we have understood that these are the specialized structures having characteristic shape present inside the cell that will function either in the cellular growth, maintenance and reproduction, or the combination of any three, right. And what this again organelles is providing, since these organelles are separate, they are confining different reactions are present in this organelle, तो आपस में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं. और वो रिएक्शन उसी के अंदर की ऑर्गेनल में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास वो सेट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, राइट. और सेल टू सेल ऑर्गेनल का टाइप या ऑर्गेनल का नंबर वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेल का फंक्शन क्या है. वो सेल का फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो सेल का फंक्शन कुछ सीक्रेट करना है, या वो सेल का फंक्शन हार्मोन्स को रिलीज करना है, या वो सेल का फंक्शन एंजाइम्स को रिलीज करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट. या वो सेल का फंक्शन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, लाइक न्यूरॉन. सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का सेल है, उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनल्स का टाइप अलग रह सकता है, या उनका नंबर्स वेरी कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनल्स. न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ लार्ज ऑर्गेनल, लेकिन क्योंकि उसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है इन डायरेक्टिंग द लाइफ ऑफ सेल, हम इस ऑर्गेनल को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसलिए जब हमने प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया, दैट टाइम वी हैव डिफाइंड इट सेपरेटली एज अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट. प्रोटोप्लाज्म को जब हमने डिफाइन किया था, ठीक है. आई होप यू हैव गॉट द थिंग्स अबाउट ऑर्गेनल्स, जिसके और इसके पहले हमने साइटोसोल पढ़ा, उसका कंपोजिशन पढ़ा, और वो और क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, सेल में क्या क्या फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, दैट वी हैव स्टडीड, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद द साइटोसोल, राइट, एंड आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट आर ऑर्गेनल्स. तो सबसे पहले अभी हम जाने वाले हैं फाउंडेशन की तरफ, कि मेरे सेल का फाउंडेशन कैसा लेड हुआ है. जब कभी सेल निकलेगा या ग्रो होगा, तो वो सेल के ऑर्गेनल्स किसके ऊपर बिल्टअप हुए हैं. तो लेट अस फर्स्ट स्टडी की हाउ इट इज फॉर्म्ड, सेल का स्ट्रक्चर या शेप कैसा बनता है. जब खाली कोई जमीन रहती है, वो खाली जमीन के अंदर में जो मैंने प्लॉट की मार्किंग की है, मार्किंग करने के बाद में अब वो घर वहां पे रेक्टेंगुलर बनने वाला है, सर्कुलर बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है, उसकी जो रूम रहेंगे, उसका रूम का हाइट कितना रहने वाला है, उसकी लेंथ विड्थ कितनी रहने वाली है. फॉर एवरीथिंग you need to first develop its foundational structure. You need to first lead its foundational structure, and to lead its foundational structure we need some kind of material, and those material which is forming this foundational structure inside the cell,
those materials which are founding this foundational structure, which are leading this foundational structure. Sarvesh Mutkure, will you start your camera? Yes. So those foundational cells, with those material that is found leading this foundational cell are called as cytoskeleton. Skeleton which forming a skeleton structure for that cell is are called as a cytoskeleton. तो हम इस तरीके का जो फाउंडेशन यहाँ पे रहता है, अलग अलग you will require the iron rods, right, of different size, different shape, different arrangement, कि कहाँ पे 3 लगाना है, कहाँ पे 4 लगाना है, कहाँ पे किस साइज का लगाना है, मुझे उसके ऊपर क्या खड़ा करना है, depending upon that I will be requiring. So this type of arrangement is there, and similar fashion of arrangement will be there inside your cell like this. Now it is not visible to you but it is there. So we will एक एक करके हम जाते हैं उसके ऊपर. तो सबसे पहले let us understand what it is. So it is a cytoskeleton and we will now going to understand what a cytoskeleton is. ठीक है. Let me just take a pointer. This is a pointer. Okay, fine. So it is a network of protein filaments. Cytoskeleton, obviously, since inside the cell every organelle basically is made up of protein, or every major what we can say structure is made up of protein, either or a lipid structure, phospholipid structure. So the cytoskeleton is a network of protein filaments. जैसे आयरन रॉड्स होती है वैसे यहाँ पे प्रोटीन फिलामेंट्स रहेंगे. ठीक है, फिलामेंट्स यू अंडरस्टैंड आई होप. दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल. अभी हमने साइटोसोल पढ़ लिया, हमको पता है कि साइटोसोल क्या है. और इस ये जो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है, दिस लाइंस राइट, अराउंड द डिफरेंट ऑर्गेनल्स. सो दे आर these are the cytoskeleton. So basically the cytoskeleton is a network of protein filaments that extend throughout the cytosol in order of their increasing diameter. अगर हमको देखना है पढ़ना है कि वो क्या है, तो in order of their increasing diameter they are of 3 types: microfilaments, intermediate filament and microtubule. That is we will go from lower diameter to the higher diameter. That is microfilament, thinnest, then intermediate filament, thicker than microfilament but thinner than microtubule, and then we have the largest, that is microtubules. Okay, so first we will see what is 3 skeleton है, 3 टाइप के है. से फॉर एग्जांपल, और यू कैन से इट लाइक कि मेरे पास 3 अलग अलग डायमीटर की सरिया है, डायमीटर के रॉड्स है. जो ये आयरन रॉड्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, राइट, और इसका डायमीटर फिर से अलग है, राइट, बिकॉज वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर लेडिंग द फाउंडेशन. तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग डायमीटर के नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, जो अलग अलग तरीके से अरेंज होके इट विल बी लेडिंग द फाउंडेशन ऑन विच योर ऑर्गेनल इज गोइंग टू रेस्ट, in between which your organelle is going to get suspended and oriented. जो उसको वहां से मूव नहीं होने देगा, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, राइट. सो वी विल सी वन बाय वन कि उसका फंक्शन क्या है. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या शॉक एब्सॉर्ब करना, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, वी विल सी वन बाय वन. सो आई होप कि आप इतना विजुअलाइज कर सकते हो कि जैसे घर के फाउंडेशन के लिए मुझे आई शुड हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ आरसीसी फ्रेमवर्क व्हिच वी कॉल रीइंफोर्स, जिसको हम करते हैं, राइट. तो ये जो फ्रेमवर्क हम यहाँ पे सेल के अंदर में बात करें, तो ये फ्रेमवर्क कौन लीड करता है? ये फ्रेमवर्क लीड करता है आपका साइटोस्केलेटन. विच आर, क्या है साइटोस्केलेटन? इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल. सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिलामेंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड्स मेरे पास प्रेजेंट है. प्रोटीन के रॉड्स वी विल कॉल इट अ प्रोटीन रॉड्स और प्रोटीन फिलामेंट्स. रॉड्स जब मैं बोलता हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी मिस आउट होती है, फिलामेंट जब मैं बोलता हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज terminologies. Therefore, and this is a microfilament, intermediate filaments and microtubule. These 3 filaments, they are getting in what we can say piled up together, packed together to form the different structures of cytoskeleton. So first let us see कि microfilament क्या है, उसका composition कैसा हुआ है, कैसे बना हुआ है वो and what function it carries inside the cell, that we will see first. तो साइटोस्केलेटन के 3 टाइप में से पहला टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि सबसे थिनेस्ट है. माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट इज द थिनेस्ट, ट्यूब इज द थिकेस्ट. सो माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट, माइक्रोट्यूबुल इज द थिकेस्ट, and in between these two we have a intermediate filament size wise, microfilament, microtubule, right. So this is the thinnest element of the cytoskeleton, composed of which protein? Actin, which is a contractile protein. we इसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं.
ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में मैं वर्ड यूज करता था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, राइट. सो दिस प्रोटीन कैन कॉन्ट्रैक्ट, this protein have ability to change their shape and structure, right. So example is actin. So microfilament कैसे composed है, जो प्रोटीन है माइक्रोफिलामेंट का, it is composed of which type of protein? Sorry, actin. You know there are different types of proteins, right? Albumin, globulin, etc. So like that we have a actin protein से बना हुआ है आपका माइक्रोफिलामेंट. Now what is the function of these microfilaments? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है, तो दिस इज अ लोकेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट. कहां प्रेजेंट है? ये एज पे प्रेजेंट है, सेल के एज पे प्रेजेंट है, राइट. दिस इज द माइक्रोविलाई. बाद में देखेंगे माइक्रोविलाई क्या है, सीलिया क्या है, फ्लैचिला क्या है, इसको छोड़ दो अभी माइक्रोविलाई को. अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, ये सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है. लाइक अगर मैं इसकी यहाँ पे डायग्राम की बात करता हूँ, तो मेरा माइक्रोफिलामेंट सेंटर में प्रेजेंट नहीं है. मेरा माइक्रोफिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोफिलामेंट मेरा प्रेजेंट है सेल के एजेस पे और सीलिया के अंदर में, माइक्रोविलाई के अंदर में. जो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर बनता है, इसका फंक्शन देखेंगे हम क्या है माइक्रोविलाई के अंदर. तो मुझे ध्यान में रखना है कि जो माइक्रोफिलामेंट मेरा स्केलेटन का पार्ट बना रहा है, वो सेल के एज पे बना रहा है और माइक्रोविलाई के अंदर बना रहा है. दो जगह पे मेरा पहला जो मैं पढ़ रहा हूँ माइक्रोफिलामेंट, इट इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है, दो जगह पे. दैट इज इन द पेरिफेरी ऑफ माय सेल एंड इनसाइड द माइक्रोविलाई, और इट इज फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर माइक्रोविलाई. अगर मतलब ये रॉड पहले एक्सटेंड होंगे और उसके अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा, तो वो माइक्रोविलाई बनाएगा. मतलब एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है. आर यू गेटिंग द थिंग? से फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद में मुझे हॉरिजॉन्टली कुछ निकालना है या वर्टिकली कुछ निकालना है, तो वहां से पहले मुझे रॉड को एक्सटेंड करना पड़ता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने देखा होगा बहुत लोगों के छत पे ऐसा होगा कि कुछ कॉलम्स छोड़े होंगे और वहां पे उनके ऊपर कुछ सरिया प्रेजेंट होगा. देखा है क्या किसी ने? अनम्यूट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट. सो यस सर, यस. सो व्हाई वी हैव लेफ्ट इट, बिकॉज हम वहां से उसको और एक्सटेंड कर सके और उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके. सिमिलरली यहाँ से ये रॉड्स को एक्सटेंड कर किया है और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकला है. सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग, एक्सटेंशन, बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस cytoskeleton, right. I hope you can visualize it, all of you can visualize it. Most important, you should be able to visualize it, right. Now we will see the functions. अब ये extension है या ये जो एज पे माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है या माइक्रोविलस के अंदर जो इसने माइक्रोविलस फॉर्म किया है, what is basically the function of that? Let's see the function of that. So the function first is a movement, and then we have a mechanical support. First function is a movement and mechanical support. Now microfilaments are involved in muscle contraction क्योंकि वो एक्टिन प्रोटीन से बना है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. हमने देखा था इसके पहले. एक्टिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन, ये माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. व्हाट दे कैन डू, दे कैन गेट कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि वो बने ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से. एग्जांपल इज एक्टिन एंड एक्टिन. दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन. हार्ट जब पढ़ेंगे तब आएगा, उसमें से यहाँ पे अभी सिर्फ एक्टिन ध्यान में रखो, ठीक है. मैं वापस जब हार्ट पढ़ेंगे तो पूछूंगा कि इसके पहले हमने एक्टिन कहाँ पढ़ा, तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि हमने एक्टिन पढ़ा है, कि एक्टिन ने हमारा माइक्रोफिलामेंट बनाया, ठीक है. तो पहला फंक्शन है मूवमेंट के अंदर में, ये सेल के अंदर में मूवमेंट्स को हेल्प करता है, और दूसरा ये सेल डिवीजन एंड सेल लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है. तो इन मूवमेंट इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प, जब सेल डिवाइड होते रहता है, दैट टाइम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड. लास्ट स्टेप अगर आपको याद होगा, साइटोकाइनेसिस की जो लास्ट स्टेप है सेल डिवीजन के अंदर में, 12th पास करके आए हो, उसके पहले भी जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा तो भी 10th तक जो बायोलॉजी पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ा है, उसके अंदर में आपको सेल डिवीजन की प्रोसेस अगर याद होंगी, तो लास्ट प्रोसेस जो होती है, लास्ट स्टेप जो होती है साइटोकाइनेसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ द सेल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दो जो सेल्स बनी है प्रोसेस के अंदर में, मूवमेंट ऑफ द सेल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ड्यूरिंग दैट वो पैकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन लगता है सेल का, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन विल हेल्प इन सेल डिवीजन प्रोसेस. सो दिस इज where the role of actin comes. Muscle contraction सबसे पहले तो वो तो होने वाला है, then cell division and cell locomotion, that is the movement of cell. In that, you know that cell migrates from one place to another, right? So in that also microfilaments plays an important role. So muscle contraction, cell division and cell locomotion, you know that the cells move through your blood vessels, inside it crosses the blood vessel and go to some other part, and that requires that locomotion of cell requires your microfilament, right? So this is the function of microfilament in aspect of movement. Next important function of microfilament जो यहाँ पे present है एज के अंदर में, that is a provision of mechanical support. Most importantly, provision of mechanical support. So what do you mean by
sorry, I think I have got unmuted. I'm muted. Okay. So what does it mean? यहाँ पे क्या है कि they anchor अब वो साइटोस्केलेटन जो अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, जो आपने इंटीग्रल प्रोटीन्स देखा है, मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ सेल, ठीक है. सो दे एंकर द साइटोस्केलेटन टू इंटीग्रल प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड माइक्रोफिलामेंट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर सेल एक्सटेंशंस कॉल्ड एज अ माइक्रोविलस. अभी इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट. अब यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनल के सराउंडिंग में भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है. लुक इनटू द डायग्राम. मेरा लेजर पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे इस ऑर्गेनल के सराउंडिंग में, इस ऑर्गेनल के सराउंडिंग में भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, जिसके अंदर ही ऑर्गेनल सस्पेंडेड है, ठीक है. तो ये ऑर्गेनल्स को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हमने इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है. व्हाट इज हैपनिंग? ओके, if you remember the structure of plasma membrane, right, I hope you can see these lines, right, this blue colored here, you can see that. Okay, so these are the structures of these are the cytoskeleton structure. तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, पोर्स हो गए, चैनल प्रोटीन्स हो गए या आयंस हो गए, इनको होल्ड करके रखने का काम, और आपके जो सेल के अंदर, आपके सेल के अंदर के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है उनको होल्ड करने का काम, और सेल के बाहर जो एक्सटेंशन हो रहा है उस एक्सटेंशन के लिए सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम. ये तीनों काम इन द ये अगर ये काम आप कौन करता है? आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है. तो क्या कर रहा है वो? साइज एंड शेप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. किसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है, जो फिक्स्ड है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन से अंदर के ऑर्गेनल्स को उन्होंने लिंक करके, एंकर करके रखा है, ठीक है. उस प्रोटीन से उन्होंने अंदर के ऑर्गेनल को एंकर करके रखा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एक्सटेंडिंग समथिंग, मैं कहीं से एक्सटेंड करके रखा हूं और वो चीज मैंने हवा में रख दी तो नीचे गिर जाएंगी या छूट जाएंगी, राइट. बट लेकिन इफ आई एम एक्सटेंडिंग माय हैंड एंड होल्डिंग इट, राइट, वो वहीं पे फिक्स रहेंगी, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगी. तो दैट इज हाउ कि यहाँ से जो आपके एज से जो अंदर माइक्रोट्यूब्यूल जो एक्सटेंशन हो रहा है, वो बराबर आपके ऑर्गेनल्स को वहां पे लोकेट करके रखेंगे, उनको ओरिएंट करके रखेंगे सेल के अंदर में, ठीक है. दूसरा, ये जो माइक्रोविलाई, माइक्रोफिलामेंट या सेल से जो एक्सटेंशंस निकलते हैं, सेल से कौन से एक्सटेंशंस निकलते हैं? दैट कैन बी माइक्रोविलाई, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट कैन बी फ्लैजेलम, दैट कैन बी सीलियम, राइट. सो दीज आर कॉल्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल. अब यहाँ से मैं जितने मेरे घर से फॉर एग्जांपल, मुझे अगर हॉरिजॉन्टली कोई वहां से, जिसको हम सज्जा बोलते हैं, या वो निकालना है बाहर हॉरिजॉन्टली, या वर्टिकली किसी चीज को बिल्ड करना है, तो जितने रॉड्स मैं हॉरिजॉन्टल स्केल पे एक्सटेंड करूंगा, उतना ही लंबा मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा. मैं अगर छोटा रॉड एक्सटेंड करूंगा तो छोटा कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा, लंबा रॉड एक्सटेंड करूंगा तो लंबा एक्सटेंड कर पाऊंगा. सिमिलरली यहाँ पे जिस लेंथ से आपके फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एक्सटेंड होंगे, उतना ही लेंथ का वहां पे एक्सटेंशन हो पाएगा, राइट. देयरफॉर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसको साइज एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है. क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको साइज एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है. और इसके पहले क्या देखा हमने कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, ताकि वो वहां पे प्रॉपर्ली लोकेटेड रहे. So this is what we have studied now in the first part of microfilament. अब इसके अंदर में किसी को कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछ लो, क्योंकि ये सब चीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उसको देख सकते हो और करेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि घर के कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से साइटो फाउंडेशन लेड होता है. Yes, anyone? सर एक बार मूवमेंट और मैकेनिकल सपोर्ट फिर से. एक बार मूवमेंट और मैकेनिज्म सपोर्ट, ठीक है. तो हमको ये तो उसका लोकेशन समझ में आ गया, हमको पेरीफेरी में लोकेटेड है और वो सेल के बाहर भी एक्सटेंड होते हैं, ये समझ में आ गया हमको. यस अथर्व? यस सर, यस सर. राइट. नाउ लोकेशन क्लियर है हमको, ठीक है. अभी हमको इसको फंक्शन समझना है कि वहां पे ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली. तो हम समझने के लिए हम इस डायग्राम पे आए वापस कि ये तो पेरिफेरी में लोकेटेड है और इन एक्सटेंशंस में प्रेजेंट है. लुक एट द पॉइंटर प्रॉपर्ली, ठीक है. तो यहाँ पे ये सबसे पहला फंक्शन क्या बोला हमने? सबसे पहला फंक्शन बोला मूवमेंट का. क्या क्या मूव करने में हेल्प करता है ये मूवमेंट का? सबसे पहला फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन, पूरी मसल को मूव करने के लिए. क्यों कर सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि ये जो फिलामेंट्स है, ये फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हैं. क्या नाम है उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का? एक्टिन, ठीक है. दूसरा है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के अंदर में बहुत बार सेल को फ्यूज होना है, सेल को वहां से निकलना है, या सेल को मूव होना है. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स बन रहे हैं, बाद में डिवाइड हो रहे हैं. तो एट दैट टाइम देयर इज रिक्वायर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस अल्टीमेटली वहां से कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको निकलना है, मूव करना है. For that, these microfilaments are playing important role in muscle contraction, cell division, and obviously cell locomotion. That is a movement वाला part, ठीक है. नेक्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट. अब मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या रहता है? किसी चीज को होल्ड करके रखना,
उसको वहां से टूटने नहीं देना, उसको ब्रेक नहीं होने देना, उसको वहां से गिरने नहीं देना। सो दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बेसिक स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट नहीं रहा तो शायद उसका शेप चेंज हो सकता है या तो वो ब्रेक हो सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं किसी भी चीज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो आई नीड टू डू दैट। सो वहां पे हाउ वी आर डूइंग इट, ये जो साइटोस्केलेटन है, फिर से उस डायग्राम में जा रहे हैं हम, ये जो साइटोस्केलेटन है ये अलग अलग ऑर्गेनल्स को वहां पे ओरिएंट करके रखता है, ठीक है, पहली चीज। और उनको एंकर करता है, किसके साथ एंकर करता है? उनको एंकर करता है प्लाज्मा प्रोटीन, रिकॉल करेंगे सब लोग, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन, रिसेप्टार्स, आयन चैनल्स, इनके स्ट्रक्चर के साथ में वो उसको एंकर करके रखता है। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ एंकरिंग ऑफ वन मटेरियल विद अनदर दे विल रिमेन फिक्स्ड ओवर देयर, दे विल गेट अ मैकेनिकल सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर किसी वहां पे मैकेनिकल शॉक आया, स्ट्रेस आया, तो दे विल नॉट मूव और दे विल नॉट गेट डिसइंटीग्रेटेड और डिग्रेडेड, सॉरी डिसइंटीग्रेटेड बेसिकली, राइट। सो दैट इज द थिंग। दूसरा शेप प्रोवाइड करना। शेप में हमने यहाँ पे देखा दैट यहां से जो माइक्रोफिलामेंट सेल से एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ, either in the flagella or in the microvilli or in the cilium, during that what is happening, cilium and flagellum basically microtubule से बने, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभी माइक्रोफिलामेंट्स की, जो माइक्रोविलाई बनाता है, जो क्या बनाता है? माइक्रोविलाई बनाता है, उसकी बात करेंगे हम। तो माइक्रोविलाई में ये फिलामेंट जितने लेंथ का एक्सटेंड होगा उतने ही लेंथ का माइक्रोविलाई बन सकता है। फिलामेंट अगर ज्यादा लंबा एक्सटेंड हुआ तो ज्यादा लंबा माइक्रोविलाई बनता है, दैट मींस व्हाट, इट इज प्रोवाइडिंग लेंथ। और जितने वहां पे माइक्रोविलाई ज्यादा रहेंगे, इट इज दैट विल प्रोवाइड द शेप। सो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इन द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग द शेप, मेंटेनिंग द शेप and providing the support. Are you getting the point? Right. So that is about the two important functions, movement and mechanical support. So that is about the first microfilament we have studied, which is the thinnest element of the cytoskeleton. Just अभी notes आपने देख लो properly, उसके note down किए गए सभी चीजें, and we'll go to the second part. यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके अंदर में फ्लोरोसेटेड या इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से ये जो लिया हुआ है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ है ये स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस को ब्लू कलर में दिख रहा है, और ये जो आपको पेरीफेरी दिख रहा है सेल का, दिस पेरीफेरी ऑफ द सेल आपको दिख रहा है कि ये पेरीफेरी में आपके माइक्रोफिलामेंट्स है, और इन एक्सटेंशंस में आपको रेड कलर में जो दिख रहा है, these are the microfilaments, these are the microfilaments you can see over here न्यूक्लियस के अंदर में। दिस इसको स्टेनिंग किया है फ्लोरोसेटिंग मटेरियल से, और फिर बाद में हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का स्टेन हुआ है, ये जो रेड कलर, दो तीन कलर दिख रहा है आपको, रेड, ग्रीन एंड दिस ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर का एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, दैट इज अ माइक्रोफिलामेंट बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, जो लोकेशन हमने बात की थी पेरीफेरी में। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड टाइप ऑफ फिलामेंट, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमने देखा था इसके पहले कि अलग अलग डायमीटर की सरिया हमको लगती है, रॉड्स हमको लगते हैं, आयरन बार्स हमको लगते हैं टू लेट द फाउंडेशन। तो सेकंड टाइप ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ फिलामेंट, इट इज अगेन फिलामेंट नॉट अ ट्यूबुल। सो दैट सेकंड टाइप ऑफ फिलामेंट, दो टाइप की फिलामेंट और एक ट्यूबुल, एक टाइप का ट्यूबुल है बेसिकली। स्ट्रक्चर ये इसलिए इनके पैकेजिंग पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको फिलामेंट बोलेंगे या ट्यूबुल बोलेंगे, राइट। सो इट इज अ थिकर देन माइक्रोफिलामेंट बट थिनर देन माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोफिलामेंट से तो ठीक है, लेकिन माइक्रोट्यूबुल से कम है थिकनेस इसकी। दैट इज द इंटरमीडिएट, देयरफॉर वी कॉल इट द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कैसे कंपोज हुआ है ये? इसका कोई एक सिंगल प्रोटीन नहीं है जिससे कंपोज हुआ है, ये मल्टीपल टाइप के प्रोटीन से कंपोज हुआ है, राइट। दैट में इन्वॉल्व अल्ब्यूमिन, दैट में इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, इट शुड having it, they should be providing a strength, all these proteins should be providing a strength. Why? यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट हैज टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जब बात आती है तो दिमाग में डाल देना कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जैसे पहले का काम था मूवमेंट प्रोवाइड करना या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे इसका मेजरली काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। व्हाई? बिकॉज इसका जो लोकेशन है, यू कैन सी द लोकेशन throughout the cell, it is present throughout the cell, right. What we can say, surrounding different organelles, माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर रहा है, गोल्जी एपरेटस को सराउंड कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो वाइटल ऑर्गेनल्स मेरे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है उनको सराउंड करके रखा है इसने, और वहां पे क्या प्रोवाइड करना है उनको, उसका काम क्या प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मतलब जब कभी उस सेल के ऊपर कोई भी तरीके का फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस को एब्सॉर्ब करना, जो शॉक आ रहा है उस शॉक को एब्सॉर्ब करना, और वो ऑर्गेनल जिस जगह पे सेल के अंदर लोकेटेड है उसको वहां से मूव नहीं होने देना, उसको वहां पे स्टेबलाइज करके रखने का ड्यूरिंग विच एवर movement is happening inside the cell, whatever type of movement happening inside the cell during the stress position
or what during cell division or during the cell contraction. During cell contraction, during cell division or during any type of mechanical stress, जो अंदर मूवमेंट हो सकता है वो अंदर के मूवमेंट के अगेंस्ट उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना और खुद मैकेनिकल स्ट्रेस बियर करना और व्हाट वी कैन से एब्सॉर्ब करना, दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट filament, right? To stabilize the position of organelles such as nucleus and help attach cell to one another. And next function क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन कलर का फिलामेंट दिख रहा है हमको, दो सेल के बीच में का, दो सेल को अटैच करके रखना आपस में, right? So attachment of two cells together is the second function of that. First function is to provide a mechanical support to stabilize the organelles inside the cell, and it is made up of different types of proteins. Important what कि वो प्रोटीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, right? So very easy to remember the role of intermediate filament क्या है? To bear a stress, to provide to keep the organelles oriented into the cell in their space and to protect it during the movement whatever is happening during contraction of cell or during the cell division process or during any kind of mechanical stress process. इन तीनों के वक्त वहां पे जो सेल के अंदर में मूवमेंट होने वाला है उस मूवमेंट में आपके ऑर्गेनल्स डिसलोकेट नहीं होना चाहिए वहां से, तो उनको प्रॉपर्ली लोकेट करके रखने का, पोजीशन स्टेबलाइज करके रखने का काम किसका है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का. आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? सो कंपैरेटिवली माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट का मेजर फंक्शन है मूवमेंट एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल्स शेप एंड साइज. यहाँ पे ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स, उनको प्रोटेक्ट करने का मेजर काम है इंटरमीडिएट फिलामेंट का. यू कैन इजीली सी इट्स दिस लोकेशन. आई थिंक just I will take a 30-second pause in which I will ask you to recall both, recall करो और compare करो दोनों को. 30 सेकंड के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे, और take 1 minute if you require. You should be able to visualize this. What is important? You should be able to visualize it. Right now compare important thing, diameter, comparative diameter कैसा है, thin है, thick है, कैसा intermediate है, that you should remember. Composition कैसे बना हुआ है, you should remember. And basically function क्या है उसका, that you should remember about all the filaments. 2 filaments and 1 tubule is there. Now I hope I'll ask you to focus on the 2 important diagrams here or images. Just look at this packing. It is not forming the hollow structure. Microfilament is not forming a hollow structure. Look at this packing first, right? Now look at this packing again. Intermediate filament. यहाँ पे भी कहीं hollow structure बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है. It is a completely packed structure. And now look at this structure of microtubule. It is forming a tubule, a tube-like structure. You can see this. यहाँ पे hollow space है. A tube-like structure की तरह से ये इसके molecules pack है. Therefore, it is called as a tubule. And we have these 2 filaments. So filaments, they are flexible. They are not rods. They are flexible in shape, obviously, but they are having the dense packing. Here, the packing is such that it is providing a hollow tube-like structure. Therefore, it is called as a microtubule. Right? So structurally clear है. जब कभी visualize करेंगे, अभी diagram हमको रटने की जरूरत नहीं है. Remember, microtubule packing in such that it is a tube-like structure. It has a hollow space in between inside. So therefore, it is a microtubule, right? And however, it is the largest of cytoskeleton. Obviously, it is the largest of all 3. Amongst all 3, it is the largest one, comprising of tubulin. Protein which is forming this tubule is called as a tubulin protein. Microfilament is made up of actin. Microtubules are made up of tubulin, and intermediate is made up of multiple proteins. Right? So it doesn't have a specific single. It is not made up of a single protein. Right? Now the assembly of microtubule. ये जो असेंबली है, जो हमको पता है कि इसके पहले कैसा था, इसके पहले ये पेरीफेरी में था, ये सेंटर में प्रेजेंट है अभी, रैंडमली फॉर्मिंग सराउंडिंग द स्ट्रक्चर्स. नाउ द असेंबली ऑफ दिस माइक्रोट्यूबुल, दे ओरिजिनेट बेसिकली, दे हैव 2 स्ट्रक्चर्स. वी हैव सेंट्रोसोम एंड देन पेरीसेंट्रल मटेरियल वी हैव. मतलब एक जो सेंटर में सेंट्रोसोम है और पेरीसेंट्रल मटेरियल है, वहां से ये आपके माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंड होते हैं. तो हमको ये सेंट्रोसोम और पेरीसेंट्रोसोमल
प्रोजेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके फंक्शंस को प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि माइक्रोट्यूबुल ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रोजोम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये सेंट्रोजोम से वो पेरिफेरी की तरफ निकलते हैं। फंक्शन क्या है? सेल शेप प्रोवाइड करना, तो ये सभी का फंक्शन है तीनों का बेसिकली। इंटरमीडिएट को छोड़ दिया जाए तो सेल शेप प्रोवाइड करना पहला फंक्शन, वेसिकल्स को मूव करने के लिए हेल्प करना, क्रोमोसोम्स को मूव करने के लिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड स्पेशलाइज्ड सेल प्रोजेक्शन बनाना जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सेल शेप प्रोवाइड करना, ऑर्गेनल्स को मूव करवाना, सेक्रेटरी वेसिकल्स को बाहर मूव करना, क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के वक्त मूव करवाना, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स, एंड थर्ड इज सेल प्रोजेक्शंस जनरेट करना लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला, जो हमने इसके पहले देखा है यहाँ पे। फ्लैजेला एंड सीलिया, three type of projections: microvilli, flagellum, cilium. Microvilli is made up of what we can say microfilaments, and cilia or flagellum is made up of microtubules, right? So if I'll ask you what are the three types of extensions and what they are made up of, you should be able to answer that, right? So coming back to the point, that is microtubule, third, made up of tubulin protein, which is a hollow tube, unbranched hollow tubes. Like here we could see a branches of that, right? सो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान में रहेंगे माइक्रोट्यूबुल्स के। आई होप सेल शेप प्रोवाइड करना, ऑर्गेनल्स का मूवमेंट करना, तीन ऑर्गेनल्स का, सेक्रेटरी वेसिकल्स का, क्रोमोसोम्स का, एक्सेट्रा, एंड सेल प्रोजेक्शंस बना लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला। लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट की उसका स्ट्रक्चर कैसे कहां से निकलता है। तो हमने जैसे बताया कि सेंट्रियोल्स और पेरिसेंट्रियोल मटेरियल से आपका सेंट्रोजोम बना है। ठीक है, सेंट्रोजोम में से आपका ये जो हमने यहाँ पे बात की कि ये जो सेंट्रोजोम है, इस सेंट्रोजोम में से आपके माइक्रोट्यूबुल्स ओरिजिनेट होने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम में से आपके या अटैच्ड उसको माइक्रोट्यूबुल्स अटैच प्रेजेंट वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ सो दिस इन दिस स्ट्रक्चर द पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल ऑफ द सेंट्रोजोम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट सेंट्रियोल्स, एंड उसके सराउंडिंग में जो मटेरियल आपको जो ये शेड दिख रहा है ब्लू कलर का इन रॉड्स के सराउंडिंग में, दैट इज पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, now these centriole के दो पेयर रहते हैं, ये one and they are arranged perpendicularly upon each other, right? These are the pair of centrioles, cylindrical structure, each composed of 9 clusters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें तीन तीन से बने हैं। ठीक है, 9 clusters, you can see these clusters. Let me take a pen. This is first cluster, this is second cluster, right? So it is made up of 9 clusters. पहले तो ये दो पेयर में प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम की। सेंट्रोजोम क्या है? जिसमें से आपके जो माइक्रोट्यूबुल का पार्ट है, जहां से माइक्रोट्यूबुल ओरिजिनेट होने वाला है। ठीक है, वो सेंट्रोजोम बना है दो चीजों से। कौन से दो चीजों से बना है? सेंट्रियोल्स और पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से बना है। सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल इज अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ 9 क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये एक एक जो दिख रही है, ये 9 क्लस्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक एक जो क्लस्टर है ये 3 माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ है। एक एक क्लस्टर कैसे बना है? 3 माइक्रोट्यूबुल से। और माइक्रोट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है, राइट? तो ये एक माइक्रोट्यूबुल हो गया। ऐसे ये 3 माइक्रोट्यूबुल से एक क्लस्टर बना है, 9 क्लस्टर से एक सेंट्रियोल बना है, ऐसे ही 9 क्लस्टर से दूसरा सेंट्रियोल बना है, और ये दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, कहां से चालू करेंगे? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 माइक्रोट्यूबुल। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको 1 माइक्रोट्यूबुल का, राइट? सो ऐसे 3 माइक्रोट्यूबुल से एक क्लस्टर बन रहा है, ऐसे 9 क्लस्टर्स प्रेजेंट है, 9 क्लस्टर से एक सेंट्रियोल बनेगा, और हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है अरेंज परपेंडिकुलरली ओवर ईच अदर, लाइक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लोकेटेड है। आई होप यू कैन सी इट। ठीक है, तो दिस इज अ सेंट्रियोल और पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। नाउ which contain hunter of ring shaped complex composed of protein tubulin। यहाँ पे ट्यूबुलिन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, काय के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, नाउ ये इसको क्या बोलते हैं कि फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग द माइटोटिक स्पिंडल। जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होने वाला है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ, दैट टाइम टू फॉर्म दैट माइटोटिक स्पिंडल, वो यहाँ से ओरिजिनेट होगा। माइटोटिक स्पिंडल जो वहां से ओरिजिनेट होगा, वी विल सी इट लेटर कि माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीजन की प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर में, सेल चैप्टर के अंदर में सेल डिवीजन, सेल कम्युनिकेशन, सेल ट्रांसलोकेशन जो हमको पढ़ना है, सेल डेथ जो हमको पढ़ना है,
ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस वी विल बी स्टडिंग इन मोर डिटेल कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट? सो दिस, जस्ट रिमेंबर दैट ट्यूबुलिन complexes are organizing the center for the growth of mitotic spindle which plays critical role in cell division. Then during cell division centrosome replicate. ये जो centrosomes है, जो एक सेंट्रोसोम हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर में 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, एक सेंट्रोसोम जिसके अंदर में 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, ये रेप्लिकेट करता है उस वक्त सेल डिवीजन के बाद, राइट? सो दैट सक्सेसिंग जनरेशन ऑफ सेल हैव द कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन. So it plays this pericentriolar material that is contains 100 of tubulin complexes, protein complexes, along with the centriole, right? They help in the cell replication. Just remember that they help in the cell replication. And what they exactly help in? They help in mitotic spindle formation. Microtubule helps in mitotic spindle formation. For the sake of understanding its structure and function, जब इतना ध्यान में रखो, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलैरिटी का कंसेप्ट क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है? सो आई होप यू आर क्लियर विद कि सेंट्रोसोम के 2 कंपोजिशंस क्या है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जो आपका माइक्रोट्यूबुल बना रहा है, माइक्रोट्यूबुल जिससे बना हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है. दूसरा माइक्रोट्यूबुल जो 2 चीजें बनाता है वो है सीलिया या फ्लैजेला. इट प्रिपेयर्स द 2 इंपॉर्टेंट, पहला शेप प्रोवाइड करना है, दूसरा सेल ऑर्गेनल्स को मूव करने में हेल्प करना है, जैसे वेसिकल को मूव करने में हेल्प करना है या क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करना है. और अब तीसरा जो फंक्शन है आपके माइक्रोट्यूबुल का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एक्सटेंशंस दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ, राइट? सो ये जो एक्सटेंशन हमने देखा था, जो डायग्राम हमने जब देखी थी, ये जो 2 एक्सटेंशन हमने देखे थे, ये 2 एक्सटेंशन सीलियम और फ्लैजेलम है. तो मेरे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में एक ही फ्लैजेलम रहता है, दैट इज योर स्पर्म सेल व्हिच हैव अ टेल, राइट? जो टेल उसको प्रेजेंट है, दैट हेल्प्स इन द व्हाट वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म towards oocyte. That is the only flagellum present in the human body. Apart from that we have the cilias, and these cilias जो स्वाइपिंग का काम करते हैं, जो फूड को मूव करेंगे, म्यूकस को क्लीन करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स इसके फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस अभी एक एक करके देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या है, राइट? सो लेट अस फर्स्ट गो टू द सीलिया एक्सटेंशन जो हम देख रहे हैं सेल के अंदर का एक्सटेंशन. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होने वाला है, मतलब इसका कवरेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा. ये है आपके सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, या वहां पे सेंट्रोसोम के अंदर में 3 के क्लस्टर थे, यहाँ पे 2 के क्लस्टर. यू कैन सी दिस doublet of microtubule. It is a doublet of microtubule. There we have a triplet of microtubule. So when I'll ask you what is the difference of arrangement in the cilia and difference of arrangement in the centrosome, so you should be able to tell me that there we have a cluster of 3 microtubules, here we have a cluster of 2 microtubules. This is central pair of microtubules, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is a central one. So 10 pairs you can see that 10 माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स, मतलब कितने हुए, पूरे मिला के कितने हुए? 20 माइक्रोट्यूबुल्स. पूरे मिला के कितने हुए? 20 माइक्रोट्यूबुल्स इस पर्टिकुलर एक फ्लैजेलम के अंदर में या एक सीलिया के अंदर में प्रेजेंट है. दिख रहा है हमको डायग्रामेटिकली, समझ रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज अ बेसल बॉडी. ये बेसल बॉडी है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और इस बेसल बॉडी से जो आपके माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंड कर रहे हैं सेल के बाहर, वो एक्सटेंशन को कौन सराउंड कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन सराउंड कर रहा है उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो 3 पार्ट अगर मैं सीलिया के डिफाइन करना चाहूंगा या किसी भी प्लाज्मा का 3 पार्ट डिफाइन करना चाहूंगा तो क्या क्या बताऊंगा? सबसे पहले ये बेसल बॉडी की प्लेट रहेंगी, दिस वन, a plate of basal body it will have. Second, it will have the arrangement of body of microtubules which is surrounded by a plasma membrane, right? So you can easily define the structure of cilia or flagellum. पढ़ने की जरूरत नहीं है, विजुअली देख सकते हैं. अब बेसल प्लेट, अरेंजमेंट of microtubules and the covering of plasma membrane. That cilia and flagella, and we were discussing about the cilia and flagella structure. Sir. Yes, Harsh. सर ये डायग्राम में जो ग्रीन कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 2 के क्लस्टर में, बट वो बेसल बॉडी से सर 3 के क्लस्टर में निकल रहा है. ओ, ये जो बेसल बॉडी दिख रहा है, ये जो बेसल बॉडी है, ये 3 के क्लस्टर में जो बेसल बॉडी है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रोसोम, जो हमने इसके पहले पढ़ा है, ये वाला एक्सटेंशन. सो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रोसोम पार्ट, एंड दैट स्ट्रक्चर, लेट मी है, एंड दिस इज एंटरिंग इनटू दिस. यहाँ पे जो एंटर हो रहा है ये डबल्स के है,
राइट। तो ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट करने का काम, दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोसोम, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेंट्रोसोम का बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये जो सीलिया फ्लैजेला है, सीलिया फ्लैजेला के तीन पार्ट ध्यान में रखेंगे। Thank you for asking this question. Otherwise, there would be a confusion with for many students. That these, ये जो cluster दिख रहा है, obviously you can see this cluster, right? This is a cluster of again 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो इसके पहले हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 9 का cluster है ये सेंट्रोसोम का पार्ट है। ठीक है, हर्ष क्लियर है ये? Yes sir. Right. Thank you. These are from cytosol, and these ये जो डबलेट है ये 10 है। ठीक है, these are 10, right? Means total 20 microtubules. यहाँ पे 9 3 27 microtubules. It is made up of 20 microtubule, doublet microtubules का जो structure है यहाँ पे, right? So you can just I think clearly you can visualize it separately now. ठीक है, so these doublets which are extending from the plasma membrane, covered by a plasma membrane again, extension that is covered by a plasma membrane again, and a basal body plate. These three are comprising your cilia and flagella. Now let us understand the difference between cilia and flagella. So structurally, cilia means eyelashes. It is taken from that, which is a short hair-like projection that extends from the surface of cell. Now each cilium contains a core of 20 microtubule. ये डिस्कस कर चुके हम पहले कि वो 20 माइक्रोट्यूबुल से बना है। 10 का डबलेट प्रेजेंट है, 10 का डबलेट प्रेजेंट है, अरेंजमेंट हमने देख लिया था, एंड सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हमने देख लिया। एंड ये भी देख लिया कि ईच सीलियम इज एंकर्ड बाय द बेसल बॉडी जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द बेसल बॉडी इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सेंट्रियोल। बेसल बॉडी कैसा है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑफ सेंट्रियोल एंड फंक्शंस इन इनिशिएटिंग द असेंबली ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। प्रांजलि, म्यूट योरसेल्फ। प्रांजलि लिंगलवार। Okay, so okay, so what right now what we know about the structure of cilium? We know that cilia means a word derived from eyelashes, so it is a short hair-like projection. That first thing we know about the cilia. What again we know about its structure? That it is made up of arrangement of 10 doublets, that is total 20 microtubules, which is surrounded by a plasma membrane, and it is initiating from the basal plate, basal body, that is anchored below the surface of plasma membrane, और जो जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेंट्रियोल के जैसा है, और जो वहां से सीलिया और फ्लैजेला की असेंबली को इनिशिएट कर रहा है, जो हमने इसमें अभी यहाँ पे देखा। बेसल प्लेट, ये सेंट्रियोल वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, इसके 10 डबलेट से बना हुआ है, एंड दिस इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? अभी इसका थोड़ा पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं हम, कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, दोज हु आर सिगरेट स्मोकर, निकोटिन बेसिकली, निकोटिन कैन पैरालाइज दिस सीलिया, राइट? दे कैन पैरालाइज दिस सीलिया, दे कैन व्हाट वी कैन से, मतलब वो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं कर रहे, वो फंक्शनल ब्रेकडाउन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरालिसिस, दे कॉल्ड कॉज द पैरालाइज, दे कैन पैरालाइज द सीलिया, राइट? सो जो भी सिली रिएक्शन है, वो सिली रिएक्शन क्या रहती है वहां पे? उनका काम रहता है कि थिक म्यूकस सीक्रेशन को वहां से ये करना, व्हाट वी कैन से मूव करना, एक्सट्रीमली थिक म्यूकस सीक्रेशन को वहां से मूव करना। एयरवेज पैसेज में वो प्रेजेंट है, आपके स्टमक में प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में प्रेजेंट है, राइट? तो जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है, और वहां पे जो भी सीक्रेशंस जा रहा है, या जो भी व्हाट वी कैन से पैसेज के लिए जा रहा है, वो उसको वहां से पैसेज स्मूथ करने के लिए ये सीलिया, इसका ये कोर फंक्शन है, सीलिया का कोर फंक्शन है बेसिकली, राइट? तो लेकिन जब कभी आपकी सीलिया पैरालाइज हो जाएंगी, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिगरेट स्मोकर, आपने देखा होगा सिगरेट स्मोकर को कफिंग करके बहुत बार चीजों को बाहर निकालना पड़ता है, या ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है, या पास करवाना पड़ता है। दे कफ बेसिकली, व्हाई दे कफ? बिकॉज उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में का जो सिली एक्शन होता है बिकॉज ऑफ सीलिया, दैट हैव गॉट पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंटेक ऑफ निकोटिन. So those who have excessive intake of nicotine through cigarette via that, so in those persons you can see that there is a paralysis of this cilia, right? And for this reason they cough often to remove the foreign particles. So that is the importance, that is the significance of this cilia. Again we have that cell lines in the uterine tube, which see that sweeps the oocyte.
टुवर्ड्स द यूटेरस, जो oocytes को यूटेरस की तरफ भेजते हैं, एक सेल से उसको यूटेरस की तरफ भेजते हैं। तो जो फीमेल स्मोक करती है उसके अंदर में यूटेरस के बाहर, आउटसाइड द यूटेरस प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा है, राइट, दैट इज ट्यूब प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर में क्या हो चुका है, उनके अंदर में यूटेरिन और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया था, जो एग्स को स्वाइप कर रहा था, मूव कर रहा था अंदर की तरफ, उसको वहां से वो मूव नहीं कर पाता है। तो अंडरस्टैंड इज, मतलब यू कैन कनेक्ट नाउ, आई होप द रोल ऑफ, या उसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सिमिलरली you have the cilia in the different types, different tubes also, so that is the role over there, एयरवे पैसेज करना के अंदर में म्यूकस को ट्रांसपोर्ट करना, या यूटेराइन ट्यूब के अंदर में एग्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये सीलिया का फंक्शन है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फ्लैजेला। सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सीलिया बट आर टिपिकली मच लॉन्गर। सीलिया का ऐसा ही है स्ट्रक्चर में, सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर में मतलब क्या है, वो भी माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ है, उसका भी अरेंजमेंट वैसा ही है स्ट्रक्चरली, बट लेंथ ज्यादा है। Structurally, it is same as that of the flagella, cilia, but it is longer in length. And flagella usually moves an entire cell. Cilia आपके सेल के पास प्रेजेंट है, वो cilia मूव होता है, सेल वाहिका वही है, cilia मूव होता है, म्यूकस को क्लियर करता है, एक को स्वाइप करता है एयरवे के, व्हाट वी कैन से यूटेरस के अंदर में, लेकिन वहां वो सेल, यूटेराइन सेल मूव नहीं होता है, या आपके एयरवे का सेल मूव नहीं होता है। फ्लैजेला के अंदर क्या होता है, फ्लैजेला सेल को ही मूव करवाता है कंप्लीटली, फ्लैजेला सेल को ही मूव करवाता है कंप्लीटली। Therefore, example क्या है हमारे पास में, sperm cell, right? So flagellum generate forward motion along its axis by rapidly wiggling in the wave-like pattern. It wiggles in a wave-like pattern. It wiggles, right? So therefore, it provides a movement in the forward direction. The only example of flagellum in human body is a sperm cell's tail. Sperm cell का head और sperm cell का tail पढ़ चुके हम लोग पहले। तो the tail of sperm cell is an example of flagellum, only example of flagellum in the human body, and which propels the sperm towards oocyte in uterine tube. Just note down all these points. Let's just see in short how the movement is occurring. So this is the movement, this is the direction of stroke and this is the direction of recovery. मतलब जो move हुआ है जिस डायरेक्शन में, वो stroke का डायरेक्शन हुआ है, और move इस डायरेक्शन में होगा तो ये stroke का डायरेक्शन है, move इस डायरेक्शन में होगा तो ये stroke का डायरेक्शन, and the dotted arrow is showing the recovery state, recover कैसे हुआ। तो basically this moves in this direction, right? Eyelashes जैसे it moves in this direction, power stroke, cell surface का extension, this, ठीक है। So this is the first bend, second bend, third, fourth, fifth, it bended in this direction. It was ऐसा प्रेजेंट था, कर्व बनाया और कर्व बना के आगे की तरफ ढकला किसी चीज को, राइट? यहाँ पे वो मटेरियल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई, लेट मी टेक अ पेन, इफ आई हैव समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे मेरा oocyte है जो मुझे आगे की तरफ प्रोपेल करना है, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले कर्व बनाया, राइट, मे बी 2-3 और oocytes रहेंगे, एंड नाउ इट इज प्रोपेलिंग दैट इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? और ये रिकवरी इस तरीके से होंगी। फर्स्ट this is recovery arrow, fifth it will go back, sixth it will go back again, and then seventh it will get straighten, ठीक है। बाद में वो पहले like it will go back and straighten. If you can see my hand in the screen, it will go back and straighten, and during the movement what it will do, it will hold and propel it in the forward direction. It will hold something here, move and propel it in the forward direction. So that is a movement of liquid. If it have a liquid with it, so it will move in the forward direction, right? This, so this is a power stroke and this is a recovery stroke. Power stroke and recovery stroke. I hope you are getting the structure. That is a movement of liquid. So cilia move the fluid along cell surface, and flagellum moves the entire cell, that we have seen the example of sperm cell, right? So that is cell surface and it moves in the, it wiggles like a wave. It wiggles, this is the movement of cell, it wiggles like a wave. तो फ्लैजेला का टेल जहां पे टर्मिनेट हो रहा है इस साइड में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेल मूव करेंगे। फ्लैजेला का टेल यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो सेल इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब टेल पीछे और सेल आगे, इस तरीके से वो आगे की तरफ उसको मूव करेंगे। टेल जिस डायरेक्शन में और हेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हेड रहेगा, मतलब सेल का स्ट्रक्चर रहेगा, उस डायरेक्शन में वो आगे की तरफ मूव करेगा होल सेल। तो आई होप यू हैव गॉट द, अगेन फिर से एक बार मैं पावर स्ट्रोक और रिकवर स्ट्रोक सीरियल मूवमेंट का बताता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल के स्ट्रक्चर से आपके सीलियाज निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सीलियाज प्रेजेंट है।
तो अब ये जो सेल के स्ट्रक्चर का सीलिया आपने देखा, इस सेल के स्ट्रक्चर में यहाँ से अगर इसको म्यूकस रिमूव करना है या म्यूकस को इस डायरेक्शन में प्रोपेल करना है, नीचे के डायरेक्शन में इसको म्यूकस को प्रोपेल करना है, तो किस तरीके से मूव करेंगे ये? सबसे पहले तो ये फ्लैट था, सेल के सरफेस पे ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। अब ये स्ट्रक्चर पहले बेंड होगा और बेंड होगा, आगे के डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये सभी स्ट्रक्चर्स बेंड होंगे, राइट। तो जो फ्लूइड मेरा पहले यहाँ प्रेजेंट था वो आगे आएगा, यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो और आगे गया, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो और आगे गया। इस तरीके से मेरा फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है, राइट। जैसे आपका सीलिया आगे की तरफ बेंड करते जाएगा और फिर ये सीलिया जो आगे की तरफ बेंड हुआ है ये धीरे धीरे पीछे जाएगा, इट विल गो बैक। फर्स्ट कितना पीछे गया, फिर और पीछे गया, फिर और पीछे, एंड फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पावर स्ट्रोक, लाइक दिस, लुक एट माई हैंड, पावर स्ट्रोक एंड देन रिकवरी, power stroke and then recovery. So that is the movement, like power stroke and then again it is a recovery. So this is how the movement of fluid is happening, or fluid जो cell के अलावा movement चल रहा है आपका, and this is the movement of cell, whole cell with the help of flagella. So that's it for a cytoskeleton. 3 types of cytoskeleton. Flagella, cilia is a part of microtubule. It is made up of microtubule. Structure of cilia and flagella same. Flagella is just a longer in comparison to cilia. Cilia is made up of 20 microtubules in the form of 10 doublets covered by, originating from the basal plate and covered by a plasma membrane, right. And basically ये जो microtubule है ये कहाँ से originate हो रहा है? सेंट्रियोल से originate हो रहा है microtubules। और सेंट्रियोल जो है ये दो पेयर है, दो पेयर में प्रेजेंट है। each pair is having what? Each pair is having the 9 clusters of 3 triplets, 9 clusters of triplets, 3 microtubules, right. So these are 9, these are 27, 9 these are 27। तो सेंट्रियोल के अंदर में 27 54 माइक्रोट्यूबुल से आपका सेंट्रियोल का पेयर बना हुआ है, 54 से सेंट्रियोल का पेयर बना हुआ है। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, these are the 20 microtubules, right. और माइक्रोट्यूबुल, since why it is called tubule, because it presents the hollow structure. Then we have studied, उसके पहले हमने पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसका मेजर फंक्शन क्या है? स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस बियर करना और स्टेबलाइज करके रखना ऑर्गेनल्स की पोजीशंस को। आई होप यू रिमेंबर, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूबुल कैसे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूबुल कैसे बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, राइट। देन वी हैव स्टडीड द, उसके पहले हमने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट्स, जो कैसे बना है? एक्टिन, अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच इज द थिनेस्ट माइक्रोफिलामेंट, इज द थिनेस्ट एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। दो मेजर फंक्शन हमने देखा था उसका, दैट इज मूवमेंट एंड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। सो इन मूवमेंट वी हैव सीन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक्टिन प्रेजेंट है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस वी रिक्वायर, एंड द सेल लोकोमोशन वी रिक्वायर दिस। मैकेनिकल सपोर्ट वी हैव सीन पेरीफेरी में, बेसिक स्केलेटन के साथ एंकर करना इंटीग्रल प्रोटीन और स्ट्रक्चर को, एंड देन अगेन शेप ऑफ सेल, शेप उसको प्रोवाइड करना। तो दीज आर द फंक्शंस, right. We have studied the cytoskeleton, right. I hope you can correlate these structures with your cytoskeleton. Then organelles we have taken, what is organelles and what are the characters different organelles. उसके पहले हमने साइटोसोल का कंपोजिशन देखा और साइटोसोल कौन से फंक्शंस को फैसिलिटेट करता है, दैट वी हैव सीन। अब इसके आगे के जो भी ऑर्गेनल्स है या साइटोस्केलेटन के जो बाकी रिलेटेड फंक्शंस है, एसोसिएटेड फंक्शंस है, जैसे माइक्रोट्यूबुल का एसोसिएटेड फंक्शन है सेल डिवीजन के वक्त, तो उस वक्त उस फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उस वक्त स्पिंडल फॉर्मेशन में जब ये हेल्प करता है। माइक्रोट्यूबुल का जो बेसिक फंक्शन, 3 फंक्शन हमने देखे थे, सेल का शेप प्रोवाइड करना, ऑर्गेनल्स का मूवमेंट करना, सेक्रेटरी से वेसिकल्स को मूव करवाना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, एक्सोसाइटोसिस के वक्त बाहर मूव करवाना, एंडोसाइटोसिस के वक्त अंदर मूव करवाना, that in that microtubule plays an important role, right. Then it is also forming a specialized cell projection like cilia and flagella। तो ये फंक्शन हमने पढ़ा। तो इसमें से जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन वाला फंक्शन है, दैट इज क्रोमोसोम का मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर में माइक्रोट्यूबुल का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट वी विल स्टडी, राइट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। Yes, one by one. Sir, will nicotine also affect the motility of flagella? Yeah, it can affect, yes, definitely. Why? Because it is made up of same structure, and since it will have a same binding site for nicotine, it can affect. Any other question?
The centrosome. Who is asking? Atharva Devurkar. Yes, what about centrosome, Atharv? I didn't understand. That portion was too fast. What exactly, what do you want to understand? Composition? No, sir. Yes, sir. Composition. Composition. So centrosomes, basically these are the clustered structure present inside the cell. यहाँ पे हमने देखा था जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो दिस इज लाइक अ दिस इज अ सेंट्रोसोम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। लाइक जो बीच में आपको दो पेयर दिख रहा है सेंट्रियोल का, और उसके सराउंडिंग में जो डार्क ब्लू कलर का पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल दिख रहा है जो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये पूरा मिला के आपका सेंट्रोसोम बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोसोम बन रहा है, ये जो पहले हम यहाँ पे 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूबुल को, सेंट्रोसोम्स, सीलिया एंड फ्लैजेला, ये 3 मेजर चीजें जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी जो सेंट्रोसोम इज व्हाट द सेंट्रोसोम पेरीसेंट्रियोल फंक्शन, सबसे पहले हम इसको समझ में आते हैं कि सेंट्रोसोम इट इज फ्रॉम वेयर योर व्हाट वी कैन से माइक्रोट्यूबुल इज गोइंग टू गेट ओरिजिनेटेड, वहां से, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ दैट माइक्रोट्यूबुल की जो असेंबली है, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने इसके पहले देखा था, असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल बिगिंस इन ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। मतलब माइक्रोट्यूबुल जो असेंबल होने वाले हैं वहां पे, जो ये तीनों फंक्शन कैरी करने वाले, सेल शेप प्रोवाइड करना, ऑर्गेनल्स को मूव करना या सीलिया फ्लैजेला बनाना, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये ओरिजिनेट हो रहा है सेंट्रोसोम से। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? सेंट्रोसोम से। सो माइक्रोट्यूबुल ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रोसोम व्हिच इज लोकेटेड इनटू द साइटोप्लाज्म, और वहां से आपके माइक्रोट्यूबुल निकलते हैं। इसीलिए आपको ये जो प्लेट दिख रही थी यहाँ पे, ये प्लेट के अंदर में जो ये आया था, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रोसोम, देयरफॉर ये 9 का क्लस्टर था, और बाद में ये कन्वर्ज हुआ 2-2 के क्लस्टर में आगे में फॉर्म हो रहा है, राइट, टेकन फ्रॉम दिस ओनली, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज एक्सटेंडिंग। सो कमिंग बैक टू द सेंट्रोसोम, और अब ये जो सेंट्रोसोम है जहां से आपके माइक्रोट्यूबुल निकलने वाले हैं, सेल के अंदर जाने वाले हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाने वाले हैं, एक्सटेंड होने वाले हैं, ये सेंट्रोसोम 2 पार्ट से बना हुआ है। कौन से 2 पार्ट से बना है? पहला सेंट्रियोल का पेयर, और दूसरा उसके सराउंडिंग में जो डार्क ब्लू कलर का आपको पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल दिखता है, जो ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रिंग शेप ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है वो, राइट। तो सेंट्रियोल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है? सेंट्रियोल्स 2 पेयर में प्रेजेंट है, परपेंडिकुलरली दे आर स्टैंडिंग देयर ऑन ईच अदर, राइट। सो वन पेयर इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, वन पेयर इज मेड अप ऑफ 9 clusters, right, or composed of 9 clusters. Each cluster is made up of 3 microtubule. Each cluster is made up of 3 microtubule. तो ये जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिया है, that is 1 cluster. This is 3rd cluster. This is 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th cluster of each of 3 microtubule. So 9 3 is 27. 27 microtubule से एक सेंट्रियोल बना है, दूसरा सेंट्रियोल भी 27 माइक्रोट्यूबुल से बना है। तो ये 2 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल टुगेदर 54 माइक्रोट्यूबुल की ट्यूबुल्स लेयर से बनी हुई है। और ट्यूबुल्स क्यों है? क्योंकि ये हॉलो शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये 1 माइक्रोट्यूबुल, ये 3 माइक्रोट्यूबुल, ये 9 क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूबुल, ये 2 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स का क्लस्टर या सेंट्रियोल्स, राइट। आई होप यू हैव गॉट दिस अरेंजमेंट। यू कैन सी दिस अरेंजमेंट, ये जो सर्कल के अंदर में अरेंजमेंट दिखा है ये। अब इसके सराउंडिंग में क्या है? इसके सराउंडिंग में है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, राइट, जिसमें बहुत सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये बहुत सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, ये वियर एंड टियर ऑफ दिस ट्यूबुल के वक्त लगता है, एंड दे आल्सो हेल्प जब कभी आपका माइटोटिक स्पिंडल ओरिजिनेट होगा, ओरिएंट होगा, वहां पे अरेंज होगा, दैट टाइम दिस पेरीसेंट्रियोलर ट्यूबुलिन मटेरियल इज रिक्वायर्ड। उस समय वो इसका फंक्शन हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जो ट्यूबुल्स है, सेंट्रियोल्स है, यहाँ से आपके माइक्रोट्यूबुल का जन्म होने वाला है, निकलने वाले हैं वो, ठीक है। और निकल के कहाँ पे आने वाले हैं? आपके सेल्स के अंदर स्प्रेड होंगे, एंड दे विल आल्सो एक्सटेंड आउटसाइड द सेल फॉर्मिंग फ्लैजेला एंड सीलियम। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Any other question on whatever we have studied today? So we have studied cytoplasm, in which cytosol and organelles. We have studied the cytosol composition, functions, what are the provisions of cytosols inside the cell, then organelles, and this. Anybody have any other question?